Hello everyone. After the completion of skeletal system, we are on the new topic that is joint. Bones are too rigid कि आप उसे bend नहीं कर सकते without being damaged. Fortunately, कुछ joints हैं हमारी body में which actually permitting the movement of these bones. ये जो joints हैं, these joints are also known as articulation. articulation. This is articulation और हम इसे एक और नाम देते हैं. We also call it arthrosis. We also called it arthrosis, articulation, arthrosis, joint, सारे एक ही नाम है. Actually, arthrosis, articulation or joint is a point of contact. It can be between two bones, it can be between bone and cartilage, or it can be between the bone and teeth. जब हम कहते हैं कि one bone articulate with another bone, इसका मतलब है कि ये एक जॉइंट बना रहे हैं. द साइंटिफिक स्टडी ऑफ जॉइंट जो है दैट इज कॉल्ड आर्थ्रोलॉजी. आर्थ्रोलॉजी इट मीन्स द स्टडी ऑफ जॉइंट्स. दिस इज स्टडी ऑफ जॉइंट्स. सो लेट्स डिस्कस द टाइप्स ऑफ जॉइंट्स ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चरल क्लासिफिकेशन. मतलब कि हम अगर इसे स्ट्रक्चरली डिवाइड करें then we say the joints are of following types. देखिए तीन types, one is fibrous, second is cartilaginous and third is synovial joints. तो first one is fibrous. Fibrous के अंदर कोई synovial cavity नहीं है. The bones are held together by dense irregular connective tissue. We will say detail. And these connective tissue are actually rich in collagen fibers. The next type is cartilaginous joint. Again इनके बीच में भी कोई synovial cavity नहीं है. And what is the synovial cavity? बचा later on हम इसे डिस्कस करेंगे. और यहाँ पर हम कहते हैं the bones are held together by cartilage. कार्टिलेज होता है. उसके बाद नेक्स्ट हम कर रहे हैं that is synovial joint. Synovial joints. तो bones जो हैं, I'll show you diagram of each and every type. The bones forming the joint, they are having synovial cavity and they are actually united by the dense irregular connective tissue. उनके बीच में भी dense irregular connective tissue है and articular capsule है. That is often accessory ligaments are also there. So we will take detail of each and every joints. अगर हम functional base पर इसे functions के base पर ऐसे classify करें तो functional के base पर joints they are again divided into three types. One is called synarthrosis, second is called amphiarthrosis and third one is called diarthrosis. So let's discuss them one by one. So first one is synarthrosis. The word syn it means together. The word syn यहाँ जो लिखा है इसका मतलब है together. It means this is the joint which is not providing any kind of movement. You can say this is immovable joint. देखिए बेटा अगर SIS लिखा है तो this is the singular word. But अगर SIS की जगह if you find SES इट मीन्स वो प्लूरल है. यहाँ पे भी SES, यहाँ पर भी SES अगर लिखा हो तो वो इन वर्ड्स के प्लूरल है. तो चलिए नेक्स्ट बात करते हैं एम्फीआर्थ्रोसिस. एम्फीआर्थ्रोसिस, एम्फी का मतलब होता है ऑन बोथ साइड्स. एम्फी हम कई जगह पर एम्फीबियंस ड्यूअल जैसे इसका मीनिंग होता है बोथ साइड्स. तो मतलब दिस इज द स्लाइटली मूवेबल जॉइंट. नेक्स्ट इज डाईआर्थ्रोसिस. डाईआर्थ्रोसिस, डाई जो है दिस इज एक्चुअली द वर्ड विच इज डाईआर्थ्रोसिस. ये पूरा वर्ड मूवेबल जॉइंट को शो कर रहा है. दिस इज द फ्रीली मूवेबल जॉइंट. ऑल डाईआर्थ्रोसिस आर एक्चुअली साइनोवियल जॉइंट्स और इनमें वैरायटी ऑफ शेप्स मिलेगी और आपको डिफरेंट काइंड्स ऑफ मूवमेंट्स भी देखने को मिलेंगी. सो लेट्स डिस्कस देम वन बाय वन. Okay, so now we are moving towards the first joint. This is fibrous joint. You can see here there are three subtypes in the fibrous joint. First one is suture, second one is syndesmosis and the third one is interosseous membrane. So first one which I am going to start, this is suture. Suture जो है ये जो है it's a As you know, ये हमें पहला पॉइंट ही किया है. दिस इज एक्चुअली अ फाइब्रस जॉइंट विच इज कंपोज्ड ऑफ थिन लेयर, वेरी थिन लेयर ऑफ डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू. सूचर्स जो है दैट अकर ओनली बिटवीन द बोन्स ऑफ स्कल. सूचर्स का बेस्ट एग्जाम्पल है दिस विच हैव शोन टू यू. ये देखिए यहाँ पर दिस इज द फ्रंटल बोन
एंड यहाँ पर ये है पैराइटल बोन, इनके बीच में ये जो है दिस इज कोरोनल सूचर, इसका नाम ही है कोरोनल सूचर। आप कोरोनल वर्ड को स्किप कर सकते हैं। फॉर द नीट एग्जामिनेशन यू शुड नो दिस इज सूचर। सूचर जो है ये इरेगुलर इंटरलॉकिंग एजेस यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे हैं। एक्चुअली दीज टाइप ऑफ जॉइंट एक्चुअली प्रोवाइड एडेड स्ट्रेंथ और थोड़ा सा फ्रैक्चर का जो चांस है, फ्रैक्चर होने का जो चांस है वो इसे डिक्रीज़ करते हैं। अगर मैं आपको कुछ पॉइंट्स यहाँ पर एक्स्ट्रा बताऊँ तो याद रखिएगा, कुछ ओल्डर इंडिविजुअल्स में सूचर जो हैं वो इमूवेबल हैं, और जो इमूवेबल हैं मैंने आपको उसके लिए टर्म जो प्रोवाइड की है दैट इज़ सिनआर्थ्रोसिस। बट कहा जाता है इन्फेंट्स में दे आर स्लाइटली मूवेबल। क्यों मूवेबल है लेटर ऑन हम लेक्चर में ये भी बात डिस्कस करेंगे, कौन से ऐसे रीजन है, क्या है इनके बीच में जिसकी वजह से ये स्लाइटली मूवेबल है। सो दैट्स वाई इन इन्फेंट्स यू कैन से दीज आर एम्फीआर्थ्रोसिस। तो हम कहेंगे एडल्ट में ये जो हैं ये वाले सूचर्स दीज आर सिनआर्थ्रोसिस टाइप, एंड इन इन्फेंट्स में दीज आर एम्फीआर्थ्रोसिस टाइप। तो दोनों टाइप्स आप याद रखेंगे। सूचर्स, वैसे सूचर्स हम एडल्ट की बात करें तो हम इसे इमूवेबल जॉइंट की कैटेगरी में रखेंगे। अब आपको सूचर्स के अंदर कुछ और एग्जाम्पल भी मिलते हैं, जैसे एक सूचर है जिसके लिए मैं बात करने वाली हूँ दैट इज नोन एज सिनओस्टोसिस। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड सिनओस्टोसिस? एक्चुअली जो फ्रंटल बोन जिसे हम सिंगल बोन मानते हैं, ये सिंगल बोन जो है 6 की एज तक जाकर कंप्लीटली फ्यूज़ होती है। यस, सूचर यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा है लेकिन ये 6 की एज तक कंप्लीटली, क्योंकि शायद मैंने ये जो डायग्राम लिया है ये एक अडल्ट का डायग्राम है, तो यहाँ पर आपको जो सूचर नहीं दिखा रहा है दैट इज़ कॉल्ड सिनओस्टोसिस। और प्लीज़ इस वर्ड को याद रखिएगा, सिनओस्टोसिस इज़ बेसिकली इट्स अ कॉल्ड बोनी जॉइंट। यहाँ पर डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू नहीं है, बोन ही है, तो वो इसे आपस में ज्वाइन कर रही है, कंप्लीटली फ्यूजन हो गया है। दोनों फ्रंटल बोन, एक्चुअली फ्रंटल बोन तो सिंगल है लेकिन 2 पार्ट्स थे, वो 6 की एज तक कंप्लीटली ज्वाइन हो जाते हैं। ऐसी जगह जहाँ पर बोन की पूरा फ्यूज़न हो जाता है, दिखाई भी नहीं देता, दैट इज़ कॉल्ड मेटोपिक, और हम इसे सिनओस्टोसिस टाइप का ज्वाइंट कहते हैं। और ये जो एग्जाम्पल है जो मैंने आपको दिया, दिस इज़ कॉल्ड मेटोपिक सूचर। दिस वन इज मेटोपिक सूचर, ये जो मैंने एग्जाम्पल दिया। नेक्स्ट वी आर मूविंग टूवर्ड्स द नेक्स्ट टाइप दैट इज सिंडेस्मोसिस। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट टाइप ऑफ जॉइंट। दिस इज अ बोनी जॉइंट, जैसे मैंने अभी आपको बताया सिनओस्टोसिस, मेटोपिक सूचर, एंड द नेक्स्ट इज सिंडेस्मोसिस। Syndesmosis, again as we know, this is the type of fibrous joint, more dense irregular connective tissue than in suture. Syndesmosis fibrous joint तो है लेकिन यहाँ पर जो bones में distance है that is quite larger इन कंपैरिजन टू सूचर्स। बोन्स के बीच में जो डिस्टेंस है, मान लीजिए वहाँ पर हमने देखा बोन के बीच में बहुत कम डिस्टेंस है और इस तरह का जॉइंट है, यहाँ पर मैंने कहा कि बोन्स के बीच में डिस्टेंस थोड़ा सा ज़्यादा है, तो इसलिए कहा कि मोर डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू भी प्रेजेंट है देन इन द सूचर। डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू जो है वो बंडल्स की फॉर्म में भी अरेंज होते हैं यहाँ पर। आई विल गिव यू 2 एग्जाम्पल। वन इज डिस्टल टिबियोफिबुलर जॉइंट, एम्फीआर्थ्रोसिस है वो। डिस्टल टिबियोफिबुलर, ध्यान दीजिएगा डायग्राम की तरफ, ये दोनों बोन्स जो हैं दिस इज कॉल्ड फिबुला एंड दिस वन इज कॉल्ड टिबिया। टिबिया ये जो है दिस इज प्रॉक्सिमल, लेकिन ये वाला पार्ट है बेटा दिस वन इज कॉल्ड डिस्टल टिबियोफिबुलर। अब यहाँ पर ये तो लिगामेंट है लेकिन यहाँ पर इसके बीच में जो जॉइंट है, यहाँ पर टिबिया फिबुला के बीच में जो जॉइंट है, इट परमिट्स स्लाइट मूवमेंट, दैट्स वाई जहाँ यहाँ के लिए हमने वर्ड यूज़ किया है एम्फीआर्थ्रोसिस। अनदर एग्जाम्पल ऑफ दिस सिंडेस्मोसिस, इट इज़ कॉल्ड गोम्फोसिस। दिस इज़ गोम्फोसिस। मैंने आपको चैप्टर की इसी जॉइंट की स्टार्टिंग में बताया था कि बोन और टीथ के बीच का जॉइंट भी हम इसी में डिस्कस करते हैं जॉइंट्स में। सो दिस इज़ द जॉइंट बिटवीन द बोन एंड टीथ। टीथ के बीच में ये देखिए एक टूथ आपको दिखाई दे रहा है, तो ये जो है दिस इज़ द सॉकेट। आप जानते हैं हमारा थीकोडोंट टाइप का अरेंजमेंट है, क्योंकि ये जो बोनी सॉकेट बना है
इसके अंदर टूथ जो है वो एम्बेडेड है। ये सॉकेट किसने बनाया है? दिस इज़ द एल्वियोलर प्रोसेस ऑफ मैक्सिला एंड मैंडिबल बोन। आपको याद होगा ये हमने फेशियल बोन्स में किया था। तो इनके जो सॉकेट्स हैं, इन सॉकेट्स को एल्वियोलाई कहते हैं। तो ये जो है एक तरह से आप कह सकते हैं दिस इज़ अ टाइप ऑफ डेंटो एल्वियोलर जॉइंट, मतलब दांत के बीच में, आपके टूथ के बीच में, और एल्वियोलाई प्रोसेसेस जो बोन के हैं, बोन के नाम मैंने आपको बताए, वन इज़ मैक्सिला एंड द सेकेंड इज़ मैंडिबल। तो इन बोन्स के साथ ये जो है, तो डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू जो है वो भी टूथ के बीच में यहाँ पर प्रेजेंट है। जब हम इसके स्ट्रक्चर करते हैं तो यहाँ पर एक लिगामेंट जो डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू के बने हुए हैं, उनका नाम आपने ज़रूर पढ़ा होगा, दैट इज़ कॉल्ड thin periodontal ligaments. I'll also complete this lecture. A healthy gomphosis permit no movement, क्योंकि वो सिनार्थ्रोसिस होता है। जब आपका दांत हेल्दी है वो क्यों मूवमेंट शो करेगा, लेकिन जब उसके अंदर कोई प्रॉब्लम है, हिलेगा तो आप जानते हैं तो वो थोड़ी सी मूवमेंट परमिट करेगा। नेक्स्ट वी आर मूविंग टूवर्ड्स द नेक्स्ट फाइब्रस जॉइंट। बेटा दिस इज कॉल्ड इंटरओसियस मेम्ब्रेन। दिस इज द डायग्राम ऑफ इंटरओसियस मेम्ब्रेन। ये इंटरओसियस मेम्ब्रेन देख लीजिए, वही यहाँ पर जो मैंने आपको दिखाया था, वन दिस इज ये फिबुला है एंड दिस इज वन टिबिया, और इनके बीच में दिस इज इंटरओसियस मेम्ब्रेन। दिस इंटरओसियस मेम्ब्रेन एक्चुअली अ फाइब्रस जॉइंट, या आप कह सकते हैं कि ये जो आपको वाइट कलर के बीच में दिखाई दे रही है, दिस इज अ शीट ऑफ डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू जो कि दोनों लॉन्ग बोन्स को ज्वाइन कर रहे हैं। और ये इंटरओसियस मेम्ब्रेन जो है वो नॉट ओनली टिबिया फिबुला, बल्कि ये इंटरओसियस मेम्ब्रेन हमें रेडियस और अल्ना के बीच में भी मिलती है। तो यहाँ पर मैंने आपके सामने एग्जाम्पल लिखे हैं, रेडियस एंड अल्ना, टिबिया और फिमुला, एंड दिस परमिट स्लाइट मूवमेंट, दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड एम्फिआर्थ्रोसिस। प्लीज़ मार्क माय वर्ड्स कि हमने फाइब्रस जॉइंट्स किए। अब फाइब्रस जॉइंट्स के लिए कई बार हम अपने दिमाग में बिठा लेते हैं कि फाइब्रस जॉइंट हम कंप्लीटली मान लेते हैं कि दे आर इमूवेबल, बट ऐसा नहीं है। आपने देखा है कि स्लाइटली मूवेबल के एग्जाम्पल भी हैं, ऑल्दो इमूवेबल हमने यहाँ पर भी किए हैं, एम्फिआर्थ्रोसिस भी किया है, सिनआर्थ्रोसिस भी किया है, लेकिन अपने दिमाग में ऐसा कुछ परसेप्शन ना बना लें कि कार्टिलेजिनियस जॉइंट मूवमेंट करते हैं, साइनोवियल मूवमेंट करते हैं, लेकिन फाइब्रस मूवमेंट नहीं करते। तो फाइब्रस भी मूवमेंट करते हैं। नेक्स्ट वी आर मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट टाइप ऑफ जॉइंट, दिस इज कार्टिलेजिनियस जॉइंट। कार्टिलेजिनियस, ऑल्दो यहाँ पर भी साइनोवियल कैविटी नहीं है, इनके अंदर लिटल और नो मूवमेंट वाले एग्जाम्पल्स दोनों हमें मिलेंगे। तो इसमें हमें दो ही टाइप्स करनी है बच्चों, वन इज कॉल्ड सिनकॉन्ड्रोसिस एंड द सेकेंड वन इज कॉल्ड सिम्फाइसिस। कार्टिलेजिनियस जॉइंट पहले की बात कर रहे हैं, सिनकॉन्ड्रोसिस, वेरी इंटरेस्टिंग, प्लीज़ लिसन केयरफुली। यहाँ पर सिनकॉन्ड्रोसिस, ये देखिए डायग्राम में, ये देखिए आप बोन का स्ट्रक्चर मेरे साथ ज़रूर करेंगे। सिनकॉन्ड्रोसिस में देखिए यहाँ पर क्या है, ये बोन का ऊपर वाला पार्ट है जिसे हम एपीफाइसिस कहते हैं, ये शाफ्ट वाला पार्ट है जिसे हम डायफाइसिस कहते हैं। एक्चुअली जब बोन की ग्रोथ होती है, ग्रोथ हो रही होती है, तो इनिशियल स्टेजेस में एपीफाइसिस के अंदर कार्टिलेजिनियस टिश्यू यहाँ पर प्रेजेंट है, दैट इज कॉल्ड एपीफाइजियल प्लेट। एपीफाइजियल प्लेट इज बेसिकली यहाँ पर क्या है, हाइलाइन कार्टिलेज प्रेजेंट है। देखिए हमारी बोन भी तो साइज़ में बढ़ती है, अब जब बोन साइज़ में बढ़ती है तो यहाँ पर कार्टिलेजिनियस टिश्यू होगा, तो वो थोड़ा सा इसका ग्रोथ परमिट करेगा। तो सिनकॉन्ड्रोसिस का एग्जांपल एपीफाइजियल प्लेट है, जो कि एपीफाइसिस और ये एपीफाइसिस और डायफाइसिस को कनेक्ट कर रहा है। नाउ प्लीज़ मार्क दिस वर्ड्स। फंक्शनली अगर हम देखें, सो दिस इज सिनआर्थ्रोसिस, मतलब कि इमूवेबल जॉइंट है, बट बोन का इलोंगेशन जब सीज हो जाता है तो ये जो हाइलाइन कार्टिलेज की थिन शीट है बेटा, दिस इज एक्चुअली रिप्लेस्ड बाय बोन। तो जब हम कहते हैं कि बोनी जॉइंट होता है और जहाँ पर कार्टिलेज खत्म हो चुका है, बोनी जॉइंट है, तो वहाँ पर हम एक वर्ड यूज़ करते हैं, दैट इज कॉल्ड सिनऑस्टोसिस। सिनऑस्टोसिस, जो मैं मेटोपिक सुचर के केस में अभी आपके साथ डिस्कस करके ही आई हूँ। सो सिनऑस्टोसिस दैट इज़ अ टाइप ऑफ बोनी जॉइंट, लेकिन लेटर ऑन जब बोन्स की ग्रोथ होनी बंद हो जाती है, हाइट में बढ़नी बंद हो जाती है। नेक्स्ट एग्जाम्पल यू कैन सी द केस ऑफ सिम्फाइसिस, नाम है सिम्फाइसिस, इसके बारे में हम हिप गर्डल्स में भी डिस्कस कर चुके हैं। सिम्फाइसिस
हम सिम्फाइसिस, एक्चुअली द वर्ड मीनिंग इज ग्रोइंग टुगेदर। ये जो कार्टिलेजिनियस जॉइंट है इसके अंदर एंड, और ये देखिए ये जो दोनों बोन्स हैं ये आर्टिकुलर बोन्स हैं, और एंड अगर हम इनके एंड्स की बात करें तो ये वाला एरिया, जैसे कि मान लीजिए आप ये इनके एंड्स की बात करें तो दिस इज़ कवर्ड विद हाइलाइन कार्टिलेज। किससे कवर है ये, तो आप बताएंगे दिस इज़ कवर्ड विद, इट इज़ कवर्ड विद हाइलाइन कार्टिलेज। ये हाइलाइन कार्टिलेज से कवर्ड है, लेकिन फ्लैट डिस्क ऑफ फाइब्रो कार्टिलेज इज प्रेजेंट बिटवीन देम। तो हाइलाइन कार्टिलेज भी है यहाँ पर एंड फाइब्रो कार्टिलेज भी है। तो यहाँ पर आपको एग्जाम्पल्स के तौर पे पहला एग्जाम्पल मैंने दिया है, इट इज़ प्रेजेंट बिटवीन द मैनुब्रियम एंड द बॉडी ऑफ द स्टर्नम। स्टर्नम की बात हम ये ऑलरेडी स्ट्रक्चर कर चुके हैं। एंड इंटरवर्टिब्रल जॉइंट्स, इंटरवर्टिब्रल जॉइंट्स कौन से, तो इंटरवर्टिब्रल जॉइंट्स जो बॉडी के बीच में है, बॉडीज़ ऑफ वर्टिब्रा, वहाँ पर ये सिम्फाइसिस, सिम्फाइसिस जो है दैट इज़ स्लाइटली मूवेबल जॉइंट, तो लिमिटेड मूवमेंट परमिट करते हैं फंक्शनली, तो इसलिए हम वर्ड यूज़ कर सकते हैं दे आर एम्फीआर्थ्रोसिस। और जनरली जो सिम्फाइसिस होते हैं वो, ये जो सिम्फाइसिस हैं, ध्यान रखिएगा, एक आपको एग्जाम्पल याद करने का एक तरीका बता रही हूँ कि ऑल सिम्फाइसिस, ये जो सिम्फाइसिस हैं ये देखिए आप बॉडी की मिड लाइन में है, ये भी बॉडी के मिड लाइन में है। यहाँ पर अगर इसके ऊपर की तरफ आप वर्टिब्रल कॉलम इमेजिन करें तो वो भी बॉडी के मिड लाइन में है, स्टर्नम भी बॉडी के मिड लाइन में है। सो वी कैन यूज़ दिस वर्ड दैट सिम्फाइसिस अकर्स इन द मिड लाइन ऑफ द बॉडी। सो ये जो है दीज आर साइनोवियल जॉइंट जो है वो हमारा थोड़ा सा लॉन्ग टाइम लेगा, तो उसे हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। थैंक यू ऑल, स्टे हेल्दी।